Hello BKGians, how are you? I hope you all have benefited a lot with the videos what I am giving you for English grammar. So today I am going to deal with the parts of speech. Children, parts of speech, parts, हिस्से, ठीक है, of speech, किसके, बोलने के. तो parts of speech हम क्यों करते हैं? Whenever we are speaking or expressing anything that has to have some proper meaning. So when we are speaking something or expressing our ideas, what are we doing? We are following certain rules, and in that certain rules we are using certain kinds of words, different kinds of words, and then we are arranging them together to make a meaningful sentence. Okay, so today what we are going to learn is, we are going to learn about the parts of speech. Now see, if I tell you, if I say Neeta is a good girl, right? Neeta is a good girl. So what did we do? We took certain kinds of words. Neeta. What is Neeta? Neeta is a girl. Then supposed to be a noun. Okay. Is supposed to be a helping verb. A supposed to be an article. Good supposed to be an adjective. Girl supposed to be a common noun. So what did we do? We arranged all these things, and then what we have done is, we have constructed a sentence, right? So to make our sentence in a proper way, we use these kinds of certain words so that our sentence or meaning can be expressed well or understood well by the others. हम parts of speech क्यों ले रहे हैं? इसलिए है कि हम जब सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी वाक्य बनाते हैं, तो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के वर्ड्स को लेते हैं और उनको हम अरेंज करते हैं, और फिर हम क्या कर देते हैं, अपना सेंटेंस बना देते हैं जिसमें कि पूरा मीनिंग अपने को क्लियरली समझ में आए. ठीक है? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विथ the 8 parts of speech. 8 parts of speech in short. Now from your smaller classes you have learnt about all these. So first I am going to take it in a very short way about all the 8 parts, and then we are going to come to the detailed part of some of our parts of speech. Okay. So now what is a noun? If we say noun, noun is a name of a person, place or a thing. Name of a person, place or a thing. Everybody knows that, correct? So example, we'll say Sita, Geeta, Neeta, Bombay, Delhi, Jaipur, right? Then we can say river, Himalayas, mountains, all this will be the noun. Pronoun. Pronoun, words which we use in place of noun. Words used in place of noun. Right? So how we are going to use the words? There are certain types of pronouns that we are going to study in a detailed study. Okay. So verb. Next is the verb. In smaller classes you have already studied what is verb. Verb, the words showing action. Words showing action. Right? So we say verb. काम करने वाले शब्दों को हिंदी में अगर आप बोलते हैं तो क्या बोल देते हैं, क्रिया. ओके. फॉर नाउन हिंदी में आप क्या बोल देते हैं, संज्ञा.
प्रोनाउन को क्या बोल देते हैं आप? सर्वनाम। और वर्ब को क्या बोल दिया आपने? क्रिया। ओके, नाउ एडवर्ब। एडवर्ब में हमने क्या करना है? वर्ब, क्या करा हमने? वर्ब एक्शन, तो इसमें ऐड कर देना है। वर्ब में हमको क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ऐड कैसे करेंगे? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, words that describe what? More of verb. Words describing verb is called adverb. Okay, coming to the adjective. Here also what have we done? Add. Just have to learn. सिर्फ दिमाग में रखने के लिए, आपको एक रिविजन के लिए हम शॉर्ट में दे रहे हैं. So just pay attention. Adjective. Adjective. So what are you doing? You are describing what? Noun or a pronoun. You are describing a noun or a pronoun will be adjective. Okay. Preposition. If you break the word preposition, so the words which show us the place, that also before the object, it is called preposition. Okay, so just going through this, I told you name of a person, then example I gave you Sita, Gita, Nita, mountain, river, Himalayas, all that. Pronoun, words we are using in place of noun, he, she, it, they, right? Verb, एक्शन, काम करना, है ना? अपन ने क्रिया बोला था, काम करना. तो काम में क्या हुआ? सिट, स्टैंड, ईट, प्ले, राइट. ठीक है, वो मेन वर्ब्स हो गए. एडवर्ब, अब हमने एडवर्ब बताया था कि वर्ब को डिस्क्राइब करना है. तो वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करना है? वर्ब क्या हुआ? मान लो हमने लिया राइट. वर्ब लिया हमने राइट, तो कैसे राइट कर रहा है वो? राइट नीटली. ओके. शी सिंगिंग, कैसा? स्वीटली. तो ये नीटली, स्वीटली, ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे हमारे? एडजेक्टिव्स. ओके, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हमारे काम को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हो जाएंगे एडवर्ब. ठीक है. अब नेक्स्ट हमने करा था एडजेक्टिव. एडजेक्टिव में हमने क्या कहा? एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना. अब मैं ऐसे बोलती हूँ आपको, द बॉय इज, सीता इज टॉल. मैंने क्या बताया? सीता क्या है? लंबी है, टॉल है. तो सीता इज टॉल. टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव. सीता इज ब्यूटिफुल, फ्रॉक इज ब्यूटिफुल. तो ये सब क्या हो जाएगा? डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन. ओके. प्रपोजिशन, आई टोल्ड यू प्रीपोजिशन, शोइंग पोजिशन. व्हाट इज इट? शोइंग पोजिशन, जगह. ठीक है ना? जैसे द बुक इज on the table, the book is under the table, Sita is sitting in the class. तो in, on, at, above, over, under, सब एग्जाम्पल क्या होगा? ये प्रपोजिशन के. ठीक है. अब आते हैं अपन कंजंक्शन पे. ठीक है. कंजंक्शन क्या हुआ? जंक्शन. ये वर्ड ध्यान रखो. जंक्शन का मतलब क्या हुआ? जंक्शन का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, है ना? आप अगर रेलवे जंक्शन सुना है आपने, रेलवे जंक्शन का मतलब क्या हुआ? कि इधर से उधर से, ईस्ट से वेस्ट से, नॉर्थ से साउथ से, कहीं से भी एक से ज़्यादा जगह से जब ट्रेन्स डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं और एक प्लेस पे आती हैं, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? जंक्शन. तो वही हमारा है जॉइनिंग.
ठीक है। कंजंक्शन क्या हो गया? जॉइनिंग। तो ये है कंजंक्शन होता है जॉइनिंग वर्ड्स। ये बड़ा ब्यूटीफुल है। वर्ड टू वर्ड ज्वाइन करेगा या सेंटेंस टू सेंटेंस ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? कंजंक्शन। एग्जाम्पल अपन क्या बोलेंगे? एंड, और, बट, until, एक्सेट्रा, ठीक है। और लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के लिए आप इसको याद रखो, ये क्या है? इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क शोज योर सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्या करा हमने? सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं। जो वर्ड्स सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे वाव, खुश हो जाते हैं क्या? वाव, ओह अलास, ठीक है। तो ये क्या हो गए? एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हैं। ये वर्ड्स किसके साथ यूज़ होते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ होते हैं और इनको हम क्या करते हैं? इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इन जनरल मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है व्हाट इज़ अ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection, ठीक है। Now let us focus today on 2-3 things today. Okay, so what are we going to do? We are going to focus on noun, pronoun and can be verb. Okay, so what are we going to do? We are going to mainly focus on this noun first. Let us talk about noun. What did I tell you? Noun. Noun is a name of a person, place or a thing. Noun is a name of a person, place or a thing. So for noun, what are we doing? What are we doing, children? For noun, speaking about the person, place or thing. Now you have different kinds of noun. Different kinds of noun. Kinds, or rather you say types of noun. Okay. So what are the kinds of noun? First we'll take personal. Oh God, proper. Sorry. First we are going to take proper noun. Second will be common noun. Third we are going to take material noun. Fourth we will talk about collective noun. And fifth we are going to talk about abstract noun. Okay, so what are we going to do? We are going to study the types of noun, kinds of noun, and in this proper noun. What is proper noun? Proper, particular, ठीक है। proper में हमने क्या बोल दिया? particular. तो जिसका particular नाम, particular जगह का नाम, particular thing का नाम, particular person का नाम, तो उसको हमने क्या बोल देना है? proper noun. Clear to everyone? Particular word, particular,
ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर, एग्जाम्पल नीता, रिचर्ड, इंडिया, गंगा, ठीक है, स्कूल, हिमालयस, तो प्रॉपर है, ये सब हमको मालूम है। अगर हमने बोला है नीता, तो नीता किसी लड़की का नाम है ना, तो पर्टिकुलर नीता, हर कोई तो नीता नहीं हो गई। फिर दूसरा हमने देखा रिचर्ड, रिचर्ड किसी लड़के का नाम है ना। इंडिया, इंडिया हमारी कंट्री का नाम है, हर कोई तो इंडिया नहीं हो जाता है। गंगा, गंगा किसका नाम है, या तो कोई लड़की का नाम होगा या फिर नदी का नाम है पर्टिकुलर। और फिर है अपना हिमालय, हिमालय वर्ड बोलते से समझ में पिक्चर आ रही है हमारी, हाई माउंटेन्स, आइस स्नो पीक्ड माउंटेन्स, है ना, हिमालयस। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाम, हमने पर्टिकुलर नाम दिया है तो उसको हमने बोल दिया है प्रॉपर नाउन। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जनरल, ठीक है, कॉमन नाउन जनरल में हम नाम दे रहे हैं। जैसे अब नीता, नीता कौन है, हाँ, नीता अकेले तो नहीं बोल सकती मैं, ठीक है। रिचर्ड बॉय है तो वो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। गर्ल, बॉय, माउंटेन, रिवर, पेन, ये सब क्या हो गए आपके एग्जाम्पल हो गए कॉमन नाउन के, ठीक। अब अपन आते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन वर्ड से समझ में आ रहा है हमारे को, मटीरियल, मटीरियल मतलब सब्सटेंस, जो नेचर से हमको मिलता है, जो प्रकृति से हमको मिलता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को मेनली हम क्या बोल देते हैं, मटीरियल। जैसे एग्जाम्पल हम क्या बोल देंगे, स्टोन, वाटर, ठीक है, देन वुड, गोल्ड एक्सेट्रा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमको कहाँ से मिल रही है, नेचर से मिल रही है। तो ये सब क्या है, मटीरियल। इनसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बना सकते हैं, है ना। तो हम क्या बोलते हैं उसको, मटीरियल। तो जिन चीज़ों से हम बना सकते हैं, इसके बाद में आयरन है, स्टील है, जो भी आपको जोड़ना है जोड़ सकते हैं। तो ये मटीरियल नाउन हो गए, नाम है ना पर्टिकुलर, इसलिए। अब अपन नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या करा, कलेक्ट करा, गैदर करा, है ना। अब एक सी चीज़ें हम जब ग्रुप में बना देते हैं और एक वर्ड उसको दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स पुट टुगेदर एंड गिवन अ नेम। सो इसको हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं क्राउड। क्राउड का मतलब क्या हुआ, भीड़। तो भीड़ किसकी होती है, जानवरों की होती है, नहीं ना। ऐसे बोलने से समझ में आ गया कि ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे इंसान इकट्ठे हैं, तो उनको हमने क्या बोल दिया, भीड़। इंग्लिश में हमने बोल दिया क्राउड, ठीक है। फिर हम बोलते हैं फ्लीट। फ्लीट, ढेर सारे शिप इकट्ठे हैं तो उनको क्या बोल दिया, फ्लीट। टीम, टीम क्या हो गया, प्लेयर्स के ग्रुप, प्लेयर्स का ग्रुप जब होगा तो उसको हमने क्या बोल दिया, टीम, राइट। फिर हम अगर जाते हैं और बोलते हैं स्कूल, तो स्कूल का क्या हुआ, बहुत सारी क्लास इकट्ठी, तो उसको हम एक क्या दे देते हैं नाम, स्कूल। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर है हमारा हर्ड, HERD, हर्ड, एनिमल्स का, है ना। कैटल्स,
तो ये सब ग्रुप में हैं तो उनको बोल दिया हर्ड। ऐसे बहुत सारे हैं। देन यू हैव पैक, PACK, पैक। पैक, अ पैक ऑफ कार्ड्स, पत्ते खेलते हैं तो क्या बोलते हैं? पैक ऑफ कार्ड्स। ऐसे बहुत सारे हैं जो हम ग्रुप में उन चीज़ों को, एक सी चीज़ों को रखते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब हम उसको देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील एंड अंडरस्टैंड। व्हाट कैन वी डू? ओनली फील एंड अंडरस्टैंड। जैसे कि पेन, PAIN। नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ इज PAIN, पेन। पेन क्या होता है? दर्द, है ना? पेन क्या होता है? दर्द। तो दर्द दिखता है क्या? नहीं, क्योंकि हमको चोट लगी, हमको मालूम है कि अगर ऐसा उसको भी लगा है चोट तो उसको दर्द हो रहा होगा। तो कैसा दर्द हो रहा होगा? यू कैन ओनली फील, यू कैन नॉट सी इट। ठीक है, फिर ऑनेस्टी, फिर आप क्या कर रहे हैं? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। आप ऑनेस्टी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपको सिर्फ समझ में आएगा कि हाँ ये जो बंदा है वो ऑनेस्टली काम कर रहा है, आप देख नहीं सकते ऑनेस्टी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ट्रूथ, TRUTH। ट्रूथ। अब आपको पता है कि सच्चाई क्या है ना? आपको पता है कि सच्चाई क्या है, वो सच बोल रहा है। तो बोलने का आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, लेकिन सचमुच में क्या है वो सच्चाई सिर्फ फील कर सकते हो। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अब ये तो हो गया है आपका वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और रादर रिविजन रिमाइंडिंग यू अबाउट द nouns and noun and its kind। तो हमने क्या देखा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, फर्दर वी गो। When we are studying about noun, what are we learning? नाउन को हम और भी तरीके से समझा सकते हैं। नाउन को एक ये भी होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब आप बड़े हो गए हो, आपको ये चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए। अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन। See children, it is not very, don't take it as a boring thing. You have to concentrate and understand the things. You don't have to by heart. You have to understand the things. Now when you will understand, then only you are going to find out that the things are very easy. Okay? When you are appearing for your exams, it can be your board exam, 10th class, 12th class, even when you are appearing for your competitive exams, you get all these kinds of things. If you keep these things into your mind, it is going to be beneficial for you. So countable and uncountable. Uncountable, uncountable मतलब काउंट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल है मनी, आप क्या बोलोगे? हम तो मनी तो काउंट कर सकते हैं। आप मनी काउंट नहीं करते हैं बच्चा, आप क्या करते हैं? आप करेंसी, आप नोट, आप रुपीस को काउंट करते हो, मनी को काउंट नहीं करते हो आप, है ना? आप क्या करते हो? मनी को नहीं काउंट करके आप क्या करते हो? नोट को, रुपीस को, आप कॉइन्स को, उसको काउंट करते हो, है ना? फिर उसके बाद में आपका दूसरा वर्ड है
अनकाउंटेबल में वाटर, मिल्क, टी, राइस, ये सब क्या हो गए आपके अनकाउंटेबल। कैसे? वाटर, पानी को गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते हैं। कैसे नहीं गिन सकते हैं? उसको गिनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरा मेजरमेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड अ लिटर ऑफ वाटर, फिल अप 10 liters ऑफ वाटर इन द बॉटल। तो क्या किया आपने, उसका मेजरमेंट अलग से लेके आए ना, आपने पानी को थोड़ी गिना, आपने उस मेजरमेंट को गिना कि वो ग्लास का है, कप का है, बकेट का है, ड्रम का है। तो वाटर क्या हो गया यहाँ पर, अनकाउंटेबल। मिल्क सेम वे, गिव मी सम मिल्क। अब सम में कितना सम में इतना भी होता है, सम में इतना भी होता है। हो सकता है आपको खीर बनानी है तो आपको सम में 2 किलो का भी सम हो जाएगा आपके लिए, और 1 कप भी सम हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पूछ रहे हैं मिल्क अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के लिए यहाँ पे बोला है मिल्क, तो मिल्क हम उसको काउंट नहीं कर सकते until unless we put it into some other object, और उसका मेजरमेंट हम दें। तो मेजरमेंट हम कैसे देंगे, अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ कप ऑफ मिल्क। ठीक है, सेम वे टी, टी के दाने हैं, आप गिनते हैं क्या, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना, नहीं ना। आप क्या करते हैं, चाय, अगर चाय पीनी है, आप बोलते हैं मुझे टी लीव्स चाहिए, तो भी आप लीव्स को क्या काउंट करते हैं, नहीं। आप अगर चाय के लिए बोलते हैं कि चाय पीनी है, तो यू नीड अ कप ऑफ टी, राइट। सो व्हाट आर यू डूइंग, यू गिविंग अ प्रॉपर मेजर, इसीलिए इनको हमने अनकाउंटेबल में रखा है। फाइन, नाउ कमिंग टू द काउंटेबल, ये तो आपको पता है। अब जैसे मैं यहाँ पर बोलती हूँ बॉयज, चेयर, वॉच, ओके, नेल्स और नेट, देन आई से ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या हो गए, टीचर 2 लड़के नीचे हैं, तो यू काउंटेड ना 2 बॉयज। टीचर क्लास में 5 चेयर्स की कमी है, तो क्या हुआ, 5 चेयर्स, व्हाट डिड यू डू, यू काउंटेड देम। नेट, नेट कौन सा वाला नेट, नेट क्या, हम अपना आपका नेटवर्क नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ नेट कौन सी बात कर रहे हैं, ठीक है, जाल। तो जाल को क्या करा है, बनावा जाल है, तो उसका एक नग दे दो नेट का, 2 चाहिए, इस तरह से। और ब्लैक बोर्ड, तो ये हम इसको क्या बोल दिया, एक है ना, ऐसे ही हम अलग अलग गिन सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, जिसको हम गिन सकते हैं वो हो गया आपका काउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ें हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब इसका एक और फर्दर स्टडी में हम आते हैं, और फर्दर स्टडी हमारा जो है वो इस तरह से है कि हमें नाउन में हम जेरेंड पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव। ये 2 चीज़ें आपको सीखने में मिलती है, किसमें, नाउन में ही। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन एट प्रेजेंट, ओके। सो जेरेंड, जेरेंड इज ऑल्सो अ नाउन। कौन सा वाला नाउन है, ING फॉर्म वाला, जैसे स्विम में, स्विमिंग जेरेंड है। इन्फिनेटिव क्या हो जाता है, 2 प्लस वर्ब, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा टू स्विम। ठीक है, क्या हुआ, स्विमिंग, तैरना, है ना। तो अगर आपने बोला आई लाइक टू स्विम,
आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो क्या हो गया यहाँ पे, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। इफ आई राइट स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ जब ये सब्जेक्ट बन गया तो ये क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म में भी जेरेंड, ठीक है, नाउन है जो कि जेरेंड का काम कर रहा है। इन्फिनेटिव, अगर हम बोलते हैं आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू स्विम, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, नाउन है, ठीक है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि वर्ड तो स्विम तैरना है, लेकिन यहाँ क्या शब्द में बदल गया, वो आपका नाउन। अब एक चीज़ और देखना है, एक चीज़ हमको क्या देखना है, वो ये देखना है कि जो हमारा नाउन है वो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में काम आता है। नाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट में होता है। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ सब्जेक्ट, तो मालूम है ना क्या होता है, सेंटेंस जब अपन बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट लेते, कर्ता, हिंदी में आप क्या बोलते हो उसको, है ना, ऑब्जेक्ट। तो सब ऑब्जेक्ट का काम किसके ऊपर आ रहा है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट काम क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, वो किसको बता रहे हैं, सब्जेक्ट को, तो वो हो गया नाउन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नाउन जो है वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और कभी पैसिव में वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे दैट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल दिस। सो हमेशा ध्यान रखो कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो किस में बनता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। मेनली काम करने वाला क्या हुआ, सब्जेक्ट, वो नाउन रहता है ना। अब अगर मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ आपको, द फार्मर पुल आउट द फील्ड, द फार्मर पुल आउट द फील्ड। अब फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने फील्ड पुलाव किया, खेत जोता, तो ये कौन हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ने क्या किया, काम क्या किया, ये हो गया अपना वर्ब, है ना। और किस पर किया, ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, फील्ड, नाम है ना। तो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। सो आई हैव टॉट यू दैट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा नाउन। इसी तरह से प्रोनाउन भी। अब सिंपल सी चीज़ है, प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो हमने बोला है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, उन वर्ड्स को हम बोल देते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी, अब यहाँ द फार्मर के बजाय मैं बोल देती हूँ ही पुलाउड द फील्ड, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया ना, और फिर यहाँ फील्ड फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आज मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में नाउन के बारे में बताया है। पहले आप ऑलरेडी आता था आपको कि नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्जेक्ट, abstract noun, collective noun, material noun, all this you knew. But today I have given you something very important which you should remember. Okay? कि noun और pronoun को हम subject और object दोनों
दोनों होते हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया जेरेंड, जेरेंड इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ नाउन, ठीक है। जब उसमें ing फॉर्म लगा है तो वो नाउन है, तो वो जेरेंड बन जाता है अगर हम उसको सब्जेक्ट के लिए काम में ले रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने आपको बताया था कि अगर उसमें टू प्लस नाउन लगाया है तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा, राइट। ओके, सो नाउ कमिंग इन डिटेल स्टडी फॉर प्रोनाउन। Coming, I think today it will be for noun, pronoun only. So what is pronoun? Pronoun is a word used in place of noun. For this we can put up into different types, into different categories. So what is it? The first one, if we say, first one we say personal pronoun. Demonstrative pronoun. Okay, third we can say relative pronoun. Fourth, reflexive pronoun. Fifth, indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Then you can say, okay, let us study for first these, then we are going to write down more. Okay, so what did we do here? In this personal pronoun, what are we doing? Talking about person. Talking about person. Talking about person means first person, second person and third person. Okay, first person I, we, right? Second person you, third person he, she, they, etc. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। अभी दूसरा हमने डिस्कस करना है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? You are demonstrating, you are showing, you are pointing out. See what I am doing? That is my book, right? This is your copy. What am I doing? I am showing out, I am pointing out to you, right? So what am I doing? Demonstrating. So the words which are showing us the demonstration or pointing out the words will be the example of demonstrated. This, that, those, these, okay, etc. Now coming to the relative pronoun. Relative, क्या हुआ? relative का meaning showing relation. showing relation, कैसे showing relation हुआ? which और that. अब इसमें हमको ध्यान रखना है, the book which is kept under the table, the book which is kept under the table belongs to Sita. The book which is kept under the table belongs to Sita. यहाँ देखिए अब दो चीज़ें. The book which is kept, किताब जो रखी है, under the table कहाँ है? किताब टेबल के अंदर है. किसकी है वो? सीता की है. दो चीज़ें हैं तो उसको हमने क्या करा है? रिलेशन शो किया. कौन सी किताब? जो किताब
अंडर द टेबल है वो सीता की है। तो कौन से वर्ड से हमने शो करा रिलेशन? विच से। तो ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ द बॉय स्टैंडिंग अंडर द ट्री is my brother। तो यहाँ हो जाएगा द बॉय हु इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री इज माई ब्रदर। तो मैंने यहाँ कौन सा वर्ड जोड़ दिया? हु। तो ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है। अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव में आप मीनिंग समझो। रिफ्लेक्स, साइंस पढ़ते हो, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स में क्या करते हैं? आईना में क्या आता है अपना? रिफ्लेक्शन, राइट। अभी आप आईने में अपना फोटो अपना इमेज देखेंगे तो एग्जैक्टली उधर से आता है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो आपको सब्जेक्ट से दूर मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल इनके हैं himself, herself, yourself, myself। ठीक है। लेकिन इनका जब यूज़ करते हैं वो समय देखना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ आई माई सेल्फ डिड दिस सम, क्या बोल रहे हैं? आई माई सेल्फ डिड दिस सम। तो मैंने ये क्या किया? मैंने यहाँ पर एम्फेसाइज कर रही हूँ। तो ये 6th वाला यहाँ हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है। तो ये मैंने क्या करा? एम्फेसाइज करा माई सेल्फ। एग्जाम्पल सेम रहेंगे दोनों के, है ना, लेकिन यूज उसका किसके पास है? सब्जेक्ट के पास है। तो ये क्या हो गया? एम्फेटिक। अब मैंने आपको बोला था कि रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या बोला मैंने आपको? आईना में देखते हैं अपना इमेज, रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो अब इसी सम को बोलते हैं आई डिड दिस सम माई सेल्फ। तो अब देखो आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट से कहाँ हो गया? रिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर ये माई सेल्फ वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया और ये यहाँ पर माई सेल्फ वर्ड क्या हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन और चलते हैं। तो अब 2 चीज़ और रह गई है। इंटेरोगेटिव, लेट मी रब दिस फॉर यू। So now we have interrogative and possessive pronoun. Interrogative and possessive pronouns. ओके। इंटेरोगेटिव वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए। इंटेरोगेटिव क्या हो गया? क्वेश्चन पूछना। ठीक है। तो विच, व्हाट, हु, ये सब क्या हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पोजेसिव, पोजेस करना, अपना हक, अपना अधिकार बताना। ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया? माइन, yours, his, hers, ये सब क्या हो गए आपके? possessive। this book is mine, ये किताब मेरी है।
दैट पेन इज हर्स, वो पेन उसका है ना। तो हमने पोजेशन बताया, हमारा अधिकार बताया, वो क्या हो गया आपका पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हमने आज आपको पढ़ाया है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन आई टोल्ड यू, यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड व्हाट इज नाउन, नेम ऑफ अ वर्ड, प्लेस, पर्सन, थिंग, उसके काइंड्स बताए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है वो बताया आपको। सेम वे प्रोनाउन के लिए आपको सारे काइंड्स बताए हमने कैसे हैं। ठीक है, अब आपको ये भी बताया कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए काम में आता है। So furthermore, we are going to do in our next class. Thank you.